قومی اسمبلی اجلاس 1 گھنٹے بعد ہوگا. اسپیکر قومی اسمبلی نے گرفتار 10 پی ٹی آئی اراکین کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے. اسپیکر نے جاری سیشن کے لیے آرڈر جاری کرتے ہوئے کہا گرفتار اراکین اسمبلی کی آج اجلاس میں شرکت یقینی بنائی جائے. اجلاس کا 6 نکاتی ایجنڈا جاری. صدر پاکستان کے مشترکہ اجلاس سے تشکر کا اظہار بھی ایجنڈے کا حصہ. آپ کا لہجہ بڑا سخت ہے، میں لہجہ نرم کر لیتا ہوں. 6 مہینے سے صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے پہ 1 گھنٹے میں 7 ضلعوں میں FIR ہے اور میں وہاں موجود نہیں ہوں، میری فوٹو دکھا دو. کسی کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی. میں للکاروں تو پھر میری واپس نہیں آتی. آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا. آپ مجھے جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا، میں اونچا بولوں گا، میں آواز اونچی کروں گا. کان پر جو نہیں رینگتی، للکاروں تو بات پسند نہیں آتی. کہتے ہیں لہجہ بڑا سخت ہے. ٹھیک ہے، لہجہ نرم کر لیتا ہوں. جواب نہیں دیں گے تو آواز اونچی کروں گا، نکلوں گا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا 9 ستمبر واقعے کے بعد پہلا خطاب. پشاور میں وکلا کی تقریب سے خطاب میں علی امین نے کہا لہجہ نرم ہو یا سخت، میری سوچ اور نظریہ کوئی قید نہیں کر سکتا. تمہارے باپ کا نوکر یا مزار نہیں ہوں. جواب دینا پڑے گا. سر جھکاؤں گا نہیں، کٹواؤں گا ضرور، لیکن اپنی آزادی پر سمجھوتا نہیں کروں گا. آئین توڑنے پر آج تک سزا نہیں ہوئی. یہ آئین پھر ٹوٹے گا، بار بار ٹوٹے گا. جب سزا ہوگی تو کوئی جرت نہیں کرے گا. علی امین نے افغانستان سے خود مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کر دیا. بانی پی ٹی آئی سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے گنڈاپور کے رابطے ان کے کام آئیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ان کے بیانات پر نہ جائیں. جو ہو رہا ہے پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. گنڈاپور کی باتوں کا گواہ ان کے سوا کوئی نہیں. 4 دیواری میں علی امین گنڈاپور بالکل مختلف باتیں کرتے ہیں. سٹیج پر گنڈاپور مولا جڑ بن جاتے ہیں. بلاول بھٹو کی حکومت اور اپوزیشن کو مفاہمت کی نصیحت. قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا آج اپوزیشن والے جیلوں میں ہیں، کل ہم ہوں گے. اپوزیشن اراکین استعفے نہ دے. تحریک انصاف والے آئیں، بیٹھیں، بات کریں. آج سیاسی ماحول اس مقام پر ہے کہ کوئی کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں. اسمبلی کی گیلری میں طلبہ بھی بیٹھے ہیں. ہمیں دیکھ کر ان سے کون سیاست میں آئے گا. ہم نے سیاست کو گالی بنا دیا. کیا وزیر اعلیٰ کا کام یہ ہے کہ جلسے میں آ کر گالی دے، اور وفاقی حکومت کا کام یہ ہے کہ آج کس کو بند کرنا ہے؟ آئین کی بالادستی کے بغیر پارلیمنٹ سمیت کوئی ادارہ نہیں چل سکتا. جب تک ہاؤس فنکشنل نہیں ہوگا، ملک فنکشنل نہیں ہوگا. بلاول بھٹو نے مہنگائی کی شرح کم ہونے پر حکومت کی تعریف کر دی. کہا اپوزیشن کو اعتراف کرنا چاہیے کہ مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے. تجویز دینی چاہیے کہ مہنگائی مزید کم کیسے ہو سکتی ہے. بلا وجہ تنقید کر کے IMF جیسے اداروں کے ساتھ مذاکرات کو نقصان نہ پہنچائیں. ہمارے 10 MNAs کو نقاب پوش افراد نے ایوان کے اندر سے اٹھایا. اس کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. ہر دروازہ کھولا گیا. چابیاں کس کے پاس تھیں؟ لائٹس کس نے آف کی؟ بیرسٹر گوہر کے قومی اسمبلی میں سوال. کہا انکوائری ایسے نہ کرائیں جس میں معصوم بندوں کو معطل کرتے. وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا ثبوت موجود ہیں، کسی کو ہاؤس کے اندر سے نہیں اٹھایا گیا. اسپیکر آفس میں ریکارڈ موجود ہے، کہہ دیں وہ غلط ہے. پارلیمان کے وقار کے لیے حکومت اور اپوزیشن ایک. ایوان بہتر انداز میں چلانے کے لیے اسپیکر نے 18 رکنی پارلیمانی کمیٹی بنا دی. ایاز صادق نے اسمبلی سیشن میں چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز دی تھی. اسپیکر کا کہنا تھا ہماری قیادت ساتھ بیٹھے یا نہ بیٹھے، کیا ہم اراکین پارلیمنٹ ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ تنقید ضرور کریں لیکن ایک دوسرے کی عزت کا بھی خیال رکھیں. پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح کیا گیا. واقعے کی تہ تک جاؤں گا. چارٹر آف پارلیمنٹ کے لیے بلاول بھٹو کی تجویز پر تحریک منظور. 18 رکنی پارلیمانی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری. کمیٹی میں اسحاق ڈار، خواجہ آصف، نوید قمر، خالد مقبول صدیقی، علیم خان، محمود خان اچکزئی، اختر مینگل، بیرسٹر گوہر، اعجاز الحق اور دیگر شامل. کمیٹی پارلیمنٹ کے امور کو بہتر انداز سے چلانے کا کام کرے گی.
स्पीकर कौमी असम्बली ने गिरफ्तार पीटीआई अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी पर स्पीकर का एक्शन। गैर जिम्मेदारी पर सार्जन एट आर्म्स अशफाक अशरफ और दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। लाइट बंद करने के इल्जाम में सीडीए के 5 एहलकार भी मुअत्तल। 5 को पार्लियामेंट हाउस से वापस भेज दिया गया। स्पीकर ने एडिशनल सेक्रेटरी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी भी बना दी। स्पीकर का तहकीकात के लिए वजारत दाखिला को भी खत। ज़राए का कहना है खत में लिखा गया वजारत दाखिला गिरफ्तारियों से मुतालिक तहकीकात करके स्पीकर को भी आगाह करे। वजारत दाखिला में तहकीकाती कमेटी तश्कील दिए जाने पर मुशावरत। मैं ये बात कैटेगरिकली कहना चाहता हूँ स्पीकर साहब, जो आपने इकदाम की वो तोड़े हैं, ये इससे हम मुतमईन नहीं होने। असद कैसर ने स्पीकर कौमी असम्बली के इकदाम को नाकाफी करार दे दिया। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी पर जुम्मे को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। कहा इस असम्बली की कोई हैसियत नहीं, ये 17 अरकान पर कानून साजी करना चाहते हैं। हमारे MNAs को खरीदने की कोशिश हो रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले स्पीकर ने पुलिस को गिरफ्तारियों की इजाजत क्यों दी, अब कह रहे हैं इनके खिलाफ मुकदमा कराऊंगा। पुलिस एहलकारों की बजाय जिम्मेदारों पर FIR दर्ज की जाए। सहाफी के सवाल पर कहा अली अमीन गंडापुर मीटिंग में थे, जैमर के बाइस राबता नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने कहा पीपल्स पार्टी ने मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के हर इक़दाम में साथ दिया। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट में दी गई तजवीज़ चार्टर ऑफ पार्लियामेंट को सराहा। पीपल्स पार्टी वफ्द ने मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की तारीफ की। वफ्द ने हुकूमती पॉलिसियों और इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म का खैर मकदम। PP वफ्द में नवीद कमर, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शामिल थे। आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। ऑपोजिशन की कोई जमात आइन से मुतसादिम कानून साजी की हिमायत नहीं करेगी। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कर दिया। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी से रात के मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत के इक़दामात अवाम के मफाद से मुतसादिम हैं। ऐसी हुकूमत के साथ जाने का मतलब अवाम के गैज़ो गज़ब को दावत देना है। JUI ऑपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मुलाकात में मोहम्मद अली दुरानी ने कहा मौलाना फजल रहमान तारीख की दुरुस्त समत में खड़े हैं। आप हमेशा सियासी रिवायात और जमहूरी इक़दार के अमीन रहे हैं। हाफिज हमदुल्ला का कहना है हुकूमत की हिमायत करना या हिस्सा बनना हमारी मजबूरी नहीं, हुकूमत का हिस्सा बनना आबैल मुझे मार की मानंद है। पार्लियामेंट खुद मुख्तार हैसियत खो चुकी है। सोशल मीडिया पर जज के खिलाफ मुहिम। FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने मुशीर एंटी करप्शन KP मुसद्दिक आबासी समेत 8 अफराद के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया। मुकदमा जज के भतीजे की मुद्दईयत में पीका एक्ट के तहत दर्ज किया गया। ब्लैक मेलिंग, खौफजदा करने और शहरत खराब करने के इल्जाम। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में खौफनाक आग। दुकान में कायम गैर कानूनी पेट्रोल पंप में आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। दुकान से एक शख्स की लाश निकाल ली गई। दुकान के बाहर खड़ी मुतादिद मोटरसाइकिलें भी जल गईं। आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू तर्जुमान का कहना है छत पर चढ़े अफराद को भी बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जायवकुआ पहुंच गए और सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस का कहना है पेट्रोल शॉप के करीब सिगरेट फेंकने से आग लगी। 2 माह पहले भी पेट्रोल शॉप पर कार्रवाई की गई थी, मगर दुकान मालिक ने अदालत से स्टे ले लिया था। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का जोरदार झटका। फी यूनिट बिजली मजीद ₹1.74 महंगी। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया। इजाफा अप्रैल तक जून से माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वसूली सितंबर से नवंबर तक के बिलों में की जाएगी।
कैपेसिटी चार्जेस की बात करके असल मसले से हटा दिया गया है। असल मसला ईंधन की कीमत है। सस्ती बिजली देने के लिए काम करना होगा। वफाकी हुकूमत को तजावीज़ देने जा रही हैं। चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शहरयार चिश्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमें बिजली की तलब बढ़ाना होगी। तलब बढ़ने से बिजली की कीमत कम होगी। कादिरपुर गैस फील्ड से पैदावार तेजी से घट रही है। दूसरी फील्ड से गैस दी जाए। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड में जमा होने वाली रकम मांग ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने दियामिर भाषा और मोहम्मद डैम फंड केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वकील वापडा से इस्तफसार किया कि डैम्स फंड में कितने पैसे हैं, जिस पर वकील साद रसूल ने बताया कि लगभग 20 अरब रुपए। अदालती हुक्मनामे में चीफ जस्टिस ने लिखा कि डैम्स फंड की रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रखनी है या नहीं, केस में तय करेंगे। अमल दरामद बेंच का इख्तियार आइन में कहाँ लिखा हुआ है। मेजर राजा अजीज भट्टी निशान हैदर का 59वां यौम शहादत। अस्करी क़यादत का भरपूर खिराज अक़ीदत। नमाज फजर में दुआएं और फातिहा। मेजर अजीज भट्टी ने 65 की जंग में जुर्रत और बहादुरी से मादरे वतन का दिफा करते हुए जान का नजराना पेश किया। चीफ मिनिस्टर सिंध को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखने जा रहे हैं कि 11 रबी अव्वल और 12 रबी अव्वल को छुट्टी का ऐलान किया जाए। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म को खत लिखूंगा कि 11 और 12 रबीउल अव्वल को छुट्टी का ऐलान किया जाए। कि इलेक्ट्रिक से कहूंगा दोनों दिन लोड शेडिंग न करे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गवर्नर बलूचिस्तान और उलमा की हमरा गवर्नर हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जिन मज़ारों को अब तक सजाया नहीं गया, ज़ाती हैसियत में उनको सजाऊंगा। गवर्नर हाउस कराची में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से प्रोग्राम होगा। आलीशान स्टेज बनाकर 14 अगस्त और 6 सितंबर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मेयर कराची से कहूंगा सियासी जवाब ना दें, इस्मा शहर की सड़कों की मुरम्मत का काम करा दें। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने कहा आइंदा भी सिंध आएंगे, कामरान टिसोरी से सीखेंगे, वो कोयटा का दौरा करें। सदारती मुबाहिसे में कामला हैरिस की कारकर्दगी बेहतर करार। ट्रंप बरहम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कामला हैरिस ने ट्रंप के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। ट्रंप मुबाहिसे में बार बार रोके जाने पर मेजबानों पर बरहम। कहा मुबाहिसा जानिबदार था, दोनों मेजबान कामला हैरिस के साथ थे। कई बार रोका गया मगर कामला हैरिस मुसलसल झूठ बोलती रही। खिलाड़ी रंग जमाएंगे, फैंस हौसला बढ़ाएंगे। फैसलाबाद में चैंपियंस कप का मेला आज से सजेगा। 5 टीमें, 14 मैचेस, 17 दिन एक्शन होगा जानदार। इकबाल स्टेडियम में ट्रॉफी की रूनमाई। कप्तानों और मैंटोर्स ने ट्रॉफी से पर्दा उठाया। मैंटोर्स ने इवेंट को नए टैलेंट के लिए खुशाइंद करार दे दिया। इफ्तिताही मैच मोहम्मद रिजवान की UMT मार्क कोर्स और शादाब खान की पैंथर्स के दरमियान खेला जाएगा। स्टैलियंस और लायंस की टीमें जुम्मे को टकराएंगी। टूर्नामेंट की फातेह टीम को 3 करोड़ और रनर अप को 1.5 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। व्हाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन भी टूर्नामेंट के दौरान मौजूद होंगे। और एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान और चीन आज मद्दे मुकाबले। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने जापान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। नदीम अहमद ने पहले क्वार्टर में गोल दाकर बर्तरी दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुफियान खान ने गोल करके बर्तरी दुगनी कर दी।